Hello everyone, welcome to VLearn and welcome back to the class Introduction to the Genetics. In last class of Introduction to the Genetics, we studied about multiple allelism. In today's class, we will study about the pleiotropy. So we will study pleiotropy. Pleiotropy is one of the most important part of the genetics. So this could be asked in your NEET examination. So let's start our class with the pleiotropy. If we talk about pleo, what do you mean by pleo? So basically pleo means many. What means this? So basically if we talk about pleiotropy, if we talk about a gene, one gene, normally this one particular gene controls the expression of, it basically controls the expression of one character. So this is the normal condition. So normally it controls the expression of one character, right? Example, like we studied the height gene. This height gene controls the expression of height. So height gene controls the expression of one particular character of the plant, that is height of that particular organism. This height could be tall or dwarf, means there can be two forms. Normally there can be two forms of this character, that can be tall or a dwarf character. But there are few genes, we have discovered a few genes which control the expression of more than one character. So basically when a single gene control the expression of more than one character, then it is called pleiotropy. So basically what is pleiotropy? Pleiotropy is when a single gene, one gene or single gene control the expression of one character. Then it is called pleiotropy. Don't let it confused with the concept of multiple allelism. Multiple allelism is different, pleiotropy is different. What was multiple allelism? So basically if we talk about multiple allelism means multiple allelism means more generally one gene have two alleles. But if one gene have more than two alleles, like we see in the case of blood group, if this have more than two alleles, two forms, then it is what we call multiple allelism. So multiple allelism is different, pleiotropy is different. Multiple alleles may basically there is only one gene, and this one gene control the expression of two alleles or the two forms. But मल्टीपल एलिलिज्म के केस में क्या होगा? मोर देन टू एलील्स आर प्रेजेंट. तो नॉर्मली एक जीन के पास में दो एलील्स होती है, बट इन केस ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म देयर इज मोर देन टू फॉर्म्स. जैसे कि हमने एबीओ ब्लड ग्रुप में पढ़ा था, इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप देयर वर थ्री फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन. ठीक है, तो बेसिकली द नंबर ऑफ एलील्स इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप वाज 3. बट प्leiotropy is different. Pleiotropy means one gene control more than one character. Let's study this with an example. Examples और अच्छे से समझ में आएगा. You will get a better understanding with example. So let's start with an example. The most common example which is basically asked in NEET examination, बहुत important है NEET exam के point of view से this is Pisum sativum. पाइसम सेटाइवम जो प्लांट है, पाइसम सेटाइवम, जिसपे मेंडल ने भी डिस्कवरी की थी. तो ये एग्जांपल देखते हैं भाई. पाइसम सेटाइवम में एक जीन होता है, दैट जीन इज बेसिकली कॉल्ड बी जीन.
If this B gene is present in dominant form, it basically controls the starch synthesis in these plants. जो बीज के पीस होते हैं, ठीक है, दाने जो होते हैं, इट कंट्रोल द स्टार्च एक्सप्रेशन, ठीक है, स्टार्च का जो सिंथेसिस है, स्टार्च की जो फॉर्मेशन है, वो कंट्रोल करता है ये जीन. B gene can be present in, of course, two form, capital B, or it can be present in the form of small b. यदि स्टार्च सिंथेसिस तुमको करनी है, देन इट शुड बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल बी. ठीक है. अब ये होता कैसे है स्टार्च सिंथेसिस? इफ दे आर प्रेजेंट इन कैपिटल बी, तो व्हाट डज दिस डू इज, दिस हैव एन एंजाइम, दिस हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ एन एंजाइम जिसको आप बोलते हो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम. दिस इज कॉल्ड स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम. ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज SBE. दिस SBE हेल्प्स इन दिस शुगर के अंदर क्या करता है, इसको प्रमोट करता है, ब्रांचिंग को प्रमोट करता है ये SBE इसके अंदर. इट प्रमोट द ब्रांचिंग इन द शुगर एंड इट फॉर्म्स द स्टार्च. अब जिसके अंदर स्टार्च का सिंथेसिस ज़्यादा होगा, द सीड इन विच मोर स्टार्च सिंथेसिस टेक प्लेस, of course the grain size in those plant is basically large, whereas the grain shape, because लगातार कंटिन्यू किसका सिंथेसिस हो रहा है, उस ग्रेन के अंदर स्टार्च का सिंथेसिस हो रहा है, therefore the grain shape of these grains is basically round. तो grain shape is round. ये जो बेसिकली प्लांट है जिसका जीनोटाइप स्मॉल बी है, इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर देयर इज नो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, और इफ इट इज प्रोड्यूस्ड इन वेरी लेस अमाउंट. तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द एंजाइम SBE, शुगर कैन नॉट बी कन्वर्टेड एफिशिएंटली इनटू द स्टार्च. तो शुगर स्टार्च के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से basically the size of the grain size is not large anymore. So the grain size is not large. So grain size कैसा रह जाता है, reduced रह जाता है, and the grain shape comes out to be wrinkled. देखो, basically if we talk about this particular gene, B gene, ये दो करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ग्रेन साइज को भी कंट्रोल कर रहा है, ग्रेन शेप को भी कंट्रोल कर रहा है. सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर B जीन इज कंट्रोलिंग टू करेक्टर्स इंस्टेड ऑफ वन. अब दो करेक्टर कौन कौन से हैं, दैट इज ग्रेन साइज एंड ग्रेन शेप एंड इट्स शेप. तो साइज को भी कंट्रोल कर रहा है, शेप को भी कंट्रोल कर रहा है. यहाँ पे सीड जो थी वो राउंड थी, यहाँ पे कैसी सीड्स आ रही है, रिंकल्ड सीड्स आ रही है. अब बात करते हैं हम इसको आगे इसको फर्दर लेके जाते हैं. यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसीलिए मैं इसको फर्दर लेके जाना चाहता हूँ भाई. इफ वी टॉक अबाउट दिस प्लांट्स, यदि मैं इन प्लांट्स का क्रॉस करवा दूँ, कैपिटल बी इनटू होमोजाइगस स्मॉल बी, यदि इन प्लांट्स का मैं क्रॉस करवा दूँ, ठीक है, तो हमारे पास में जो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन होगा इन द F1 जनरेशन, दैट वुड बी कैपिटल B स्मॉल b. अब जब F1 जनरेशन आती है यहाँ पे, दिस F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन जो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास में ऑब्टेन हुई, ये F1 जनरेशन के अंदर बेसिकली यदि अपन बात करें तो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम प्रेजेंट है, बट स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम वुड बी मोर इन दिस काइंड ऑफ करेक्टर, दिस काइंड ऑफ जीनोटाइप. तो यहाँ पे स्टार्च ब्रांचिंग था, लेकिन उतना नहीं था जितना होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म के अंदर, दैट इज कैपिटल बी वाली फॉर्म के अंदर था. तो यहाँ पे जो साइज आया, द साइज इज नाइदर स्मॉल नोर लार्ज. साइज जो आया दैट वाज इंटरमीडिएट साइज. कैसा साइज आया, इंटरमीडिएट साइज आया. दैट मीन्स ना ये वाला जो जीन है, इसको पूरी तरह से क्या नहीं कर पाया,
डोमिनेंट नहीं कर पाया. तो कैन वी से दैट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इनकम्प्लीट डोमिनेंस. बट जो इस पर्टिकुलर प्लांट के करेक्टर्स में दूसरा करेक्टर आया, द सेकेंड करेक्टर वाज शेप. साइज जो था वो इंटरमीडिएट था, बहुत बड़ा भी नहीं था जैसे कि इनका था और बहुत छोटा भी नहीं था. ठीक है, इंटरमीडिएट साइज है. बट शेप जो आई वो आई राउंड, क्योंकि इसके अंदर कुछ ब्रांचिंग तो हुई. ठीक है, कुछ ब्रांचिंग होने की वजह से इसका जो शेप आया दैट वाज बेसिकली राउंड. तो आप ये बोल सकते हो कि जो राउंड सीड वाला जो करेक्टर था इस जीन के रिस्पेक्ट में, उसने इस जीन के करेक्टर को, दैट इज रिंकल्ड सीड वाले करेक्टर को क्या कर दिया? मास्क कर दिया, रिप्रेस कर दिया. देयरफॉर जो शेप जो है दैट शोज द नॉर्मल डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप. नॉर्मल डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप. नॉर्मल क्या है? डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन है. एंड बेसिकली यदि हम बात करें साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म की, साइज ऑफ द ग्रेन की, तो साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. So this is pleiotropy. The other example of the pleiotropy could be cystic fibrosis. Cystic fibrosis. It can be phenylketonuria, PKU, and Pisum sativum. So these are basic examples of the pleiotropy. So आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. In next class we will study lethal gene concept. I hope you liked the video. If you have any doubt regarding this video and any other video, please mention in the comment section. Thanks for watching the video and see you in the next video.